So in a short, I'm telling that our group work for anxiety, depression, stress, goal setting, confusion towards means like clarity. If you want any of the area, we are here to give ear to your problem. We are here to listen to your problem and provide the basic counseling to you. This group started by me. I am Preeti Mehrotra. I am from Bhopal. I am career coach. I'm clarity and parenting coach. I'm also working with the different associations on a voluntary plus paid basis. Also, I'm author of a book, Accepting Children Unconditionally. And I'm also the founder and chairman of STH. I'm also a senior product manager at one of the company which works in the education line. So this is all about STH. And our mission is to give counseling or give awareness to the people, those who are suffering from mental health. And we are targeting 1 million people by 2025 so that we can give awareness to them. And that's the reason that we keep on organizing webinars, talk shows, interviews. We are very infant in this field, but still we are growing day by day, and we are attached with many experts, just like Monica today taking sessions. Our experts keep on taking sessions on Friday and Tuesday. So you all can always update your knowledge through by joining our group. So coming to the Monica, who is the speaker of today's session, she has already taken the first session on Panchkosha part 1, and today she will be conducting the session on part 2, Panchkosha part 2. So Monica is MBA in marketing, gold medalist in yoga. She did her masters in yoga from Jivaji University, Gwalior. She qualified UGC NET yoga and pursuing doctorate in yoga. Along with this, she did many courses from renowned institutions in pre and postnatal yogas, back pain and therapies of different diseases. Monica is presently associated with Vinayas Yoga Studio, Gwalior, and giving therapy in countries like UK, Canada, USA, Singapore, taught yoga in various prestigious organizations like SAF, 13 Battalion, NCC, Cadet, MP Police, taken sessions of 200 people in Jhansi for fourth under Azadi Ka Amrit Mahotsav, and taken sessions for 1700 BSF Jawans on International Day of Yoga, 21st June 2022. She is council member of Healing Towards Happiness and has promised to serve through various webinars on different topics related to mental and physical health. So this is all about Monica. So over to you, Monica. Please continue with your session. Just to recapitulate the first session so that we can connect with your first session and then coming to the second session. Thank you. Thank you so much, Preeti, for such kind words. ये पहला हमारा जो टॉपिक हमने लिया था उसको डेफिनेटली रिकैप करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग इसके अंदर नए भी हैं और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का है और रेलेवेंट है हर एक इंसान की लाइफ से, हर एक इंसान की एग्जिस्टेंस है धरती के ऊपर. तो इसको हम डेफिनेटली रिकैप करेंगे. तो लेट मी प्रेजेंट माय स्लाइड्स. Give me a second. Is that visible? Slides are visible. Wait. Right. I hope my screen is visible completely. No? Yeah, it's visible. Yeah. Okay. So I am Monica Jain, connected with Vinyas Yoga Studio, Gwalior, and I am serving as a therapist there for different diseases. Let me start with the topic. हमने पिछली बार ये टॉपिक शुरू किया था, पंचकोशा एंड हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ 5-fold एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग. यहाँ पे कई लोगों को एक चीज समझ में नहीं आई होगी जो लोग नए हैं कि व्हाट इज 5-fold एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन. हम अक्सर लोगों को एक ही दिखते हैं जो हम दिख रहे हैं, यानी कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है, जो हमारे फिजिकल लेयर है, वो हम देख पा रहे हैं. इसके अलावा हमारी और भी 4 लेयर्स हैं, वो शायद बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते हैं. तो आज हम उसका एक रिकैप करेंगे फास्ट,
और कैसे डिजीज आती है उसके ऊपर हम थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे, और फिर उन डिजीजेस को अलग अलग पद्धतियों से कैसे हम दूर रख सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा मेडिकल एंटेंगल्स में ना पड़ना पड़े और बहुत सारी चीजों में हमें ना फंसना पड़े। व्हाट इज दिस हैपनिंग? राइट, मैंने यहाँ से शुरू किया था कि जो अपनी बॉडी को नहीं जानता उसे कोई भी सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट था इस श्लोक के पीछे, जो कि हमने योग चूड़ामणि उपनिषद से लिया था, वो ये था कि अपनी बॉडी को इन एंड आउट जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी बॉडी को नहीं जानेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे कि आपकी बॉडी कब डिनोट कर रही है, कब आपको इशारा कर रही है कि आई वॉन्ट रेस्ट, आई वॉन्ट फूड, आई वॉन्ट ट्रीटमेंट, या आई वॉन्ट रिलैक्सेशन। तो अपनी बॉडी को जानना इन एंड आउट बहुत जरूरी है। ये हमारी 5 लेयर्स हैं जो हमने पिछली बार डिस्कस की थी, जो हर इंसान हमारे बारे में देख सकता है, जो हमें छू सकता है। दैट इज अन्नमय कोश, यानी कि फूड शीट विच इज मेड अप ऑफ फूड, जिसको हमें पोषित करना पड़ता है, जिसको हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसका हमें भरण पोषण करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं अन्नमय कोश। व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल पर्सनालिटी। उसके अंदर जो इस बॉडी को चला रही है उसको बोलते हैं प्राणमय कोश, यानी कि वाइटल एनर्जी, इसको एनर्जी शीट भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को चला रही है, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। थर्ड आता है मनोमय कोश, यानी कि माइंड शीट। इसके भी 3 कंटेंट्स होते हैं, वो मैं बताऊंगी। मनोमय कोश। चौथी लेयर होती है विज्ञानमय कोश, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि। और 5वीं लेयर हमारी होती है आनंदमय कोश, यानी कि इंटरनल ब्लिस, इंटरनल हैप्पीनेस, जो हर इंसान के अंदर होती है, मगर यूजुअली लोग उसको बाहर ढूंढते हैं। अन्नमय कोश के बाद हम जल्दी जल्दी एक शीट के बारे में लेके चलेंगे जो लोग नए हैं उनके लिए। अन्नमय कोश, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, फिजिकल बॉडी जिसको खाना, पानी, भरण पोषण के लिए जरूरी होती है, जो कि हमारे 5 महाभूतों से बनी होती है, जो कि ऐसे कहते हैं ना कि मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाना है। 5 महाभूतों से बनी है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 एलिमेंट से मिलकर ये बॉडी बनी है। और इसके अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनके इम्बैलेंस से हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं, और इनके बैलेंस से हम सही चलते रहते हैं। और हमारी जो पर्सनालिटी, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, वो डोमिनेंट कहलाती है किन्हीं भी 2 इन एलिमेंट्स के ऊपर। कोई भी व्यक्ति के अंदर इनमें से, इन तीनों में से 2 जो गुण, जो जो 2 दोष होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, जिसमें से एक मोस्ट डोमिनेंट होता है, एक थोड़ा सा दबा हुआ होता है। तो कई इंसान वात और पित्त डोमिनेंट होते हैं, कई पित्त और कफ डोमिनेंट होते हैं, कई कफ और वात डोमिनेंट होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। प्राणमय कोश को हम लेते हैं। प्राणमय कोश सेकंड लेयर है हमारे अंदर, एनर्जी जो कि चलती है। तो मैंने पिछली बार डिस्कस किया था कि जो प्राणमय प्राण होते हैं वो हमारी बॉडी में 10 प्रकार के होते हैं। 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण। मैंने डिस्कस किया था अपान, जो Just a कि minute, Monica. या I hope everybody can hear because Pinky is writing आवाज नहीं आ रही है. If anybody, can you please give thumbs up, or can anybody unmute yourself and tell? Because I can hear Monica very clearly. I hope everybody can hear. Thank you, Sharda. Okay, so Pinky, you need to check your at your end, right? Continue, please, Monica. Sorry for inconvenience. नो नो, अपाना जो प्राण होता है हमारी बॉडी में, दैट इज अ डाउनवर्ड फोर्स, जो कि हमारे डिफिकेशन के लिए, मेंस्ट्रुअल इजैकुलेशन के लिए, यूरिनेशन के लिए, जो भी हमारा मल मूत्र विसर्जन है उसके लिए ये डाउनवर्ड फोर्स काम करता है, जो नाभि से नीचे काम करता है। दैट इज कॉल्ड अपान। बेसिकली इट हैंडल्स हमारे जो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र होते हैं, जो नीचे होते हैं, उनको हैंडल करता है। दूसरे टाइप का प्राण हमने डिस्कस किया था, प्राणा, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग। बेसिकली जो हम सांस ले रहे हैं, एक लेमैन यही जानता है प्राण मतलब सांस। जब तक आपके अंदर सांस चल रही है, आपके अंदर प्राण चल रहे हैं, अदरवाइज यू आर डेड। यस, डेफिनेटली इट इज ट्रू। मगर ये प्राणा टाइप का जो प्राण है, ये हमारी ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेस्ट 4 टाइप ऑफ प्राणास दूसरे टाइप के काम करते हैं। जैसे मैंने बताया, अपान हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, लोअर एक्सट्रीमिटी से। उदान जो होता है, ये फोर्स है अपवर्ड एक्टिविटीज के लिए, लाइक म्यूकस निकालने के लिए, वॉमिट आती है उसको करने के लिए, स्पिट करना है उसके लिए। तो जो अपर बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए जो प्राणा रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं उदान।
चौथे टाइप का प्राण होता है समान, ये हमारे नाभि के आसपास रहता है और इसका मेन काम है डाइजेशन, जो कि मणिपुर चक्र को हैंडल करता है, हमारी जठराग्नि को, हमारे डाइजेस्टिव फायर को एक्टिवेट करता है और सबसाइड करता है एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, और बैलेंसिंग करता है ये प्राण और अपान इन दो प्राणों में। पांचवा प्राण होता है व्यान, ये पूरी बॉडी की पेरिफेरी को ध्यान देता है। जैसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे हाथ पैर कमर सब जगह जाता है, हमारी पेरिफेरल बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से जो व्यान प्राण है वो हमारे पेरिफेरल नर्व्स हैं, सेलुलर एक्टिविटीज हैं, सेल्स के लेवल पे ब्लड सर्कुलेशन है, हमारे नर्व इम्पल्सेस हैं, उनको हैंडल करता है। तो प्राणा वर्क्स इन एंटायर बॉडी। जब ये प्राणिक चैनल जो है ये कैसे चलता है, 72,000 नाड़ियों का मैंने डिस्कशन किया था कि हमारी बॉडी में जैसे ब्लड सर्कुलेशन के लिए आर्टरीज और कैपिलरीज होती हैं, सिमिलरली हमारी बॉडी में प्राणास को संचार करने के लिए नाड़ीज का एक सिस्टम है जिसके अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। और ऐसा कहा जाता है ग्रंथों में कि ये 72,000 नाड़ियां एक हमारे जो टेल बोन होती है उससे 6 इंच ऊपर वहां पे कहीं पे जाके सारी की सारी मिलती हैं, और दूसरा एक हमारा नेक वाला जो हिस्सा है यहाँ पे वो सारी नाड़ियां एक साथ गुजरती हैं। तो ये 72,000 नाड़ियों के चैनल के माध्यम से हमारे प्राणास हमारे शरीर में मूव करते हैं। मनोमय कोश, मेंटल शीथ, साइकोलॉजिकल शीथ इसको बोलते हैं। ये लेयर 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है, मन, चित्त और अहंकार। मन मतलब हमारे जो इस दुनिया को देखकर जो हमारे परसेप्शंस बनते हैं, कई चीजों को लेकर, कई लोगों को लेकर जो हमारे परसेप्शंस बनते हैं, जो हमारी सोच बनती है, उसको मन बोलते हैं। चित्त मतलब मेमोरी, जो ये परसेप्शंस बनते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर भी होंगे। तो चित्त वर्क एज ए स्टोर हाउस, एज ए गोडाउन फॉर हमारी सारी जितनी भी मेमोरीज हैं उनके लिए। और अहंकार, द सेंस ऑफ आई, कि मैं हूं, मेरी वजह से ये है, मैंने ये किया। द सेंस ऑफ आई, अहंकार, ये हमारे इस शीट के अंदर होता है। और योग वशिष्ठ ने कहा है कि ये जो शीट है ये 90% प्रॉब्लम्स के लिए हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, ये चीज मैंने आगे डिस्कस की थी, इसको भी मैं फास्ट डिस्कस करूंगी। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश सिर्फ जो अच्छा लगता है, जो परसेप्शन बनता है उसके ऊपर काम करता है। विज्ञानमय कोश यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम करता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट वन शुड नॉट डू, व्हाट वन शुड सेलेक्ट, व्हाट वन शुड नॉट सेलेक्ट, डिपेंडिंग ऑन किस माहौल में हम रह रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन सोशली एक्सेप्टेबल क्या नॉर्म्स हैं, क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, उसके आधार पे। तो विज्ञानमय कोश बेसिकली इज अवर इंटेलेक्ट, इनर इंटेलेक्ट। ये विजडम शीट होती है, ये सभी के अंदर होती है। गौरी जी ने हाथ रेस किया है, प्रीति एक बार आप देख लेना। ये हमारी इनर वॉइस होती है जो कंटिन्यूसली हमको गाइड करती है सही और गलत में डिफरेंशिएट करने के लिए। और यही एक शीट है जो हमें जानवरों से और इंसानों में जो डिफरेंशिएट कर पाती है, क्योंकि हमारे अंदर कई सारी ऐसी भावनाएं, कई सारी ऐसी हमारे अंदर विशेष आती हैं जो जानवर तो पूरी कर लेता है जहां बिना देखे कि वो चीज सही है गलत है, मगर इंसान डिफरेंशिएट कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस लेयर। और इसके बाद आता है आनंदमय कोश, दिस इज द हैप्पीनेस, दिस इज द ब्लिस शीट, ये सबके अंदर होती है और ये हमारी आत्मा के नजदीक होती है। हमारा जो सेल्फ, हमारा जो ट्रू नेचर है उसके पास में ये सबसे नजदीकी शीट होती है, आनंदमय कोश। और विडंबना यह है कि आजकल हम बड़ा घर, बड़ी कार, बच्चे अच्छे स्कूल में, वहां पे ये अपने आनंद को ढूंढते हैं, जबकि आनंद आज कैसे मिलेगा ये मैं बताऊंगी आपको आगे चल के। ये सटल मोस्ट लेयर होती है, सबसे ज्यादा जो होती है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की थी पिछली बार, यौगिक कंसेप्ट ऑफ डिजीजेस। मैं यहाँ पे जो लेके चल रही हूँ, रेफरेंस लेके चल रही हूँ, वो एक 6,000 साल पुराना एक ग्रंथ है, योग वशिष्ठ, वहां से मैंने ये कंसेप्ट लिया है, जो कि आज से 6,000 साल पहले गुरु वशिष्ठ ने राम जी की जो भ्रांतियां आ गई थी दिल में, उनको हटाने के लिए एक्सप्लेन किया था। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये रिकैप है। आधी हमारे अगर थर्ड लेयर मनोमय कोश के ऊपर बार 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 कोई अगर थॉट हिट करेगा तो वो स्ट्रेस, वहां पे आपको एक एक स्ट्रेस होगा,
और अगर लगातार वहां पे वो ठोकर मारता रहेगा तो जो बीज बनेगा सीड का, उसको गुरु वशिष्ठ ने आधि का नाम दिया है। मेडिकल लैंग्वेज में इस आधि को बोलते हैं मेंटल इलनेस या मेंटल एजिटेशन। आपके दिमाग के ऊपर जो प्रेशर है और जो कंटिन्यूसली बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड आदि। अब ये जो मेंटल एजिटेशन है, ये करेगा क्या? देखिए, मनोमय कोश में प्रॉब्लम आई, मनोमय कोश में भूकंप आया, मनोमय कोश में झटका लगा, तो वो क्या करेगा? ये दो जो पड़ोसी हैं, एक हो गया प्राणमय कोश, दूसरा हो गया विज्ञानमय कोश। अब हम पहले इस तरफ चलते हैं, ये प्राणमय कोश को कैसे डिस्टर्ब करेगा। ये स्लाइड के ऊपर मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द होल प्रेजेंटेशन। हैप्पीजार्ड प्राणा का फ्लो होगा, हमारी नाड़ीज इनस्टेबल हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगी। इसको आप इस तरीके से कनेक्ट करके देख सकते हैं कि सपोज कीजिए एकदम से आपके आपके घर में कोई अटैक कर दे या आपके घर में सांप घुस जाए, तो आप महसूस करेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, आंखें डायलेट होती हैं और सांस तेज तेज चलने लग जाती है। या इसको आप इस तरीके से समझें कि अगर आप बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं और कोई XYZ थर्ड पर्सन आता है, हो सकता है आपका जानकार हो ना हो, और वो किसी भी बात को लेकर, कोई पुरानी बात को लेकर आपसे झगड़ा शुरू कर देता है। आप जब तक समझते हैं, जब तक आप ये सोचते हैं कि ये चल क्या रहा है, उसके बाद तुरंत एकदम से आप महसूस करते हैं कि आपको भी गुस्सा आया, आपकी भी सांसें तेज चलने लगी। ऐसा क्यों होता है? आपका मन डिस्टर्ब हुआ किसी भी रीजन से, आपके प्राणास का फ्लो हैप्पीजार्ड हुआ, सांस ऊंची नीची हुई, आपका पूरा नाड़ीज का जो चैनल है वो इनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब अगर ये स्ट्रेस, देखिए दो टाइप के स्ट्रेस मैंने डिस्कस किए थे पिछली बार, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। एक होता है यू स्ट्रेस जो कि अच्छी चीजों के लिए होता है, मेरा एग्जाम अच्छा जाए, 2 दिन मुझे स्ट्रेस रहा, मैंने उसकी वजह से मोटिवेशन लेके खूब अच्छी पढ़ाई की, वो आपको एक पॉजिटिव तरफ ले जा रहा है। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आपको एक स्ट्रेस हुआ, भगवान मैं कुछ गलत ना करूं, मेरे हाथ से सब कुछ अच्छा हो, मैं जो दूं उसको बेस्ट दूं, ये स्ट्रेस है आपको, ये अच्छा स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका वो टास्क पूरा हो गया, आपका वो यू स्ट्रेस सबसाइड हो गया, उसने आपके मनोमय कोश को कोई भी आधी नहीं दी। मगर जो डी स्ट्रेस होता है वो कंटिन्यूस थॉट होता है, कंटिन्यूस थॉट होता है जो कि आपके मनोमय कोश को हिट कर रहा है कंटिन्यूसली। और जब ये डी स्ट्रेस आपकी जिंदगी में आ जाता है बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, ये सबसे पहले आपको बॉडी इंडिकेशन देती है आपके पेट के ऊपर, आपके डाइजेशन के ऊपर अटैक करके। और गुरु वशिष्ठ ने इस 3 टाइप के अटैक को बोला है, अति जीर्णत्वम, अजीर्णत्वम और कुजीर्णत्वम। यानी कि अजीर्णत्व मतलब अंडर डाइजेशन, जो भी आप खा रहे हैं वो पच नहीं रहा, आपको एसिडिटी हो रही है। अति जीर्णत्वम, आप जो भी खा रहे हैं वो इतना डाइजेस्ट हो रहा है और निकल जा रहा है कि आपकी बॉडी को नहीं लग रहा। और कुजीर्णत्वम रॉन्ग डाइजेशन, आप खा रहे हैं, आपकी बॉडी को नहीं लगा, आप वॉमिट कर रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो रही है, बहुत सारे। तो कुल मिला के अगर हम इसको देखें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो इन तीनों को एक हेडिंग में रख सकते हैं हम, डिस्पेप्सिया। यानी कि पेट से संबंधित सारी बीमारियां, पेट में अल्सर हो जाना, पेट में खाना ना पचना, पेट में जलन होना, एसिडिटी रिफ्लक्स होना ईसोफेगस में, तो ये सारी, तो आपका कहीं ना कहीं आपको पेट इंडिकेट करेगा, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो लूज मोशन हो, चाहे पेट में दर्द हो, मरोड़ हो। अगर आपके कंटिन्यूसली पेट में कोई प्रॉब्लम है, दैट मीन्स आपका पेट आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका दिमाग डिस्टर्ब है और आपको कहीं ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और जो इन पेट की प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारे शरीर पर जो प्रॉब्लम आता है, उसको गुरु वशिष्ठ ने व्याधि का नाम दिया था, राइट? आदि, व्याधि। व्याधि वी कैन कॉल इन मेडिकल लैंग्वेज साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स विच अकर फ्रॉम द मेंटल एजिटेशन, जो दिमाग की वजह से आपके शरीर पे आया है। अब हम व्याधि को डिस्कस करें, बस इस स्लाइड पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। जो व्याधि होती है ये 2 टाइप की होती है, एक होती है आदिजह व्याधि और एक होती है अनादिजह व्याधि। ये है अनादिजह व्याधि, यानी कि जो किसी आदि के वजह से नहीं हुई है, जो हमारे मेंटल एजिटेशन की वजह से नहीं हुई है, इन्फेक्शन हो गया, कोरोना हो गया, कंटेजियस डिसीज हो गई आपको, है ना, जो किसी भी अदर रीजन से आपको हुआ हो। और आदिजह व्याधि क्या होती है? जो कि मेंटल एजिटेशन से होता है। ये भी 2 टाइप की मैंने बताई थी, एक होती है सार, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म, हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार संचित हुए थे, उसकी वजह से जो इस जीवन में हमें प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, उनको बोलते हैं सार व्याधि, यानी सार आदिजह व्याधि।
और जो दूसरी ऑर्डिनरी टाइप होती है सामान्य, वो होती है रियल साइकोसोमेटिक एलिमेंट, जो अभी आप सोच रहे हैं, जो अभी आप स्ट्रेस ले रहे हैं, उसकी वजह से जो आपको हुई है, उसको बोलते हैं सामान्य व्याधि, सामान्य आदिज व्याधि। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसका बेस था योग वशिष्ठ, इसलिए आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। Why the slide is not changing? Just go back and then minimize it maybe. That's what I'm trying, but it is not happening. Okay, just refresh then. Let me check. It is on the screen. हाँ, हो गया. Priya wanted Okay. to say something. She is my lifesaver, seriously. Right. All your So, questions will be answered at the last, Priya. Right? Priya All your wanted to questions will help, be I answered at suppose. the last. Yeah. राइट. सो हमने कंसेप्ट ऑफ डिजीज अभी डिस्कस किया है ना. अब हम थोड़ा सा इसको मेडिकल उसमें लेकर देखना चाहते हैं. व्हाई अगेन इट इज हैंगिंग. हाँ, राइट. तो मेडिकल टर्म्स में डिजीजेस को क्या बोलते हैं लोग बाग जनरली, क्या एक डिस्कशन करते हैं कि हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंट्री हो गई है ना, और हम कंटिन्यूअसली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहते हैं. आंट वी? मतलब मैं सबसे यहाँ पे सवाल पूछना चाहती हूँ कि किसी न किसी प्रकार की स्ट्रेस हम सबको आज की डेट में बनी हुई है, और जितना रेस्ट हमें चाहिए उतना हम नहीं देते हैं. अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल. अब बोलेंगे दिन भर तो काम करते हैं लोग बाग, है ना, या फिर लेडीज बोलेंगे पूरे दिन तो घर में काम होता है, व्हाट सीडेंटरी लाइफस्टाइल. तो सीरियसली लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, दिस इज नॉट द लाइफ कॉल्ड कि हम कुछ हमारे फिजिकल या मेंटल बॉडी के लिए कर रहे हैं. हम काम जरूर कर रहे हैं, मगर पहले जैसा काम नहीं है. क्यों आज की डेट में यंग से यंग लोग घुटनों में दर्द की शिकायत करते हैं? काम तो वो बहुत कर रहे हैं, मगर वो काम करने का तरीका गलत है. क्यों? क्योंकि वो अपने साइनोवियल फ्लूइड को, अपने घुटने के जोड़ को कंटिन्यूअसली प्रेशर दे रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग सिचुएशंस. लेडीज खाना बना रही हैं, लेडीज कपड़े धो रही हैं वॉशिंग मशीन में, लेडीज कपड़े सुखा रही हैं, लेडीज कुछ भी काम कर रही है, बट दे आर स्टैंडिंग. So instead of working, they are damaging their kneecaps, they are damaging their synovial fluids, right? तो ये काम नहीं है. पहले के जमाने में काम होते थे, बैठ के कपड़े धोना, बैठ के खाना बनाना, बार बार उठना, बार बार बैठना. यू आर मेकिंग योर जॉइंट्स फ्लेक्सिबल, तो उसको काम कहते थे. आज के डेट के कामों को, घर के कामों को कोई काम नहीं कहते. मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर तैयार कर चुकी हूँ, और मेरे पास एविडेंसेस हैं कि घर के कामकाज से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना आपको आज की डेट में अलग से मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस के लिए अलग से कुछ करना पड़ता है. अक्यूमुलेशन ऑफ स्ट्रेस विदाउट प्रॉपर रिलैक्सेशन लीड्स टू मिजरी. ये बिल्कुल सही बात है कि हम काम कर रहे हैं. मैंने पिछली बार बताया था, आज की यंग बहुत लोगों ने सुना, वो डांस, लेडीज संगीत में डांस करते करते फला फला को हार्ट अटैक पड़ गया एंड ही पास्ड अवे. मेरे खुद के गाइड ऐसे खत्म हुए थे, और यंग एज में जिम कर रहे हैं लोग बाग और खत्म हो गए. बहुत फिटनेस फ्रीक, एवरीथिंग इज. रीजन इसके पीछे ये है कि जितना हमारी बॉडी या माइंड को रिलैक्स चाहिए उतना हम नहीं दे रहे हैं. हमारा दिमाग 15 मिनट भी रिलैक्स में नहीं है आज की डेट में. रीजन, आप सो गए आके घर पे, उसके बाद आप मोबाइल देख रहे हैं या कोई किसी 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 आप स्ट्रेस में उलझे हुए हैं, तो यू आर एक्चुअली नॉट रिलैक्सिंग योर माइंड, यू आर नॉट रिलैक्सिंग योर बॉडी. तो आप कंटिन्यूअसली, जैसे आप जीआईएफ में नीचे देख पा रहे हैं, कंटिन्यूअसली लोग बंदर कूद में लगे हुए हैं आज की डेट में. बंदरों के टाइप दिमाग चल रहा है, फास्ट मूविंग, जंप फ्रॉम हियर देयर, सब कुछ एक साथ करना है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस अपनों से. अब ये जब हमारी कंटिन्यूअसली स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी रहेगी तो होगा क्या? जाहिर सी बात है कि हमारे पेट से वो चीज नर्वस सिस्टम के ऊपर भी आएगी. नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है. इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं. तो मैं अभी बात करूंगी सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, उसकी बात हम करेंगे जल्दी से. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कम जो हमारा बनता है वो बनता है ब्रेन एंड हमारी स्पाइनल कॉर्ड से बनता है. फिर स्पाइन से जो नर्व्स निकलती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, और हमारी बॉडी में एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है. आप लोग महसूस करेंगे कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, चाकू गिरता है तो क्या होता है, फटाक से पैर हटता है वहां से, जबकि आपको नहीं पता कि वो चाकू जाके पैर पे ही गिरेगा कि नहीं गिरेगा. बट परसीविंग द डेंजर कि वो चाकू आपके पैर में जाएगा, आपका पैर अचानक से हटता है.
ये किसका काम है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, है ना? अगर आप कहीं और देख रहे हो और आपका हाथ गर्म पे लग जाए तो एकदम से हाथ हटता है, क्यों? बिकॉज योर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिंग। अब इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको क्यों ऐड कर रही हूँ आगे बीमारियां समझाने के लिए। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है हर चीज को एकदम से बढ़ाना, अपने जो हमारे आंखों में प्यूपिल होते हैं उनको डायलेट करना, हमारे मसल्स को टेंस करना, हमारे हार्ट रेट को एकदम से बढ़ा देना, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है उसको एकदम से बढ़ा देना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देना, है ना? ये क्यों जरूरी है? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। यानी अगर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी में नहीं होगा और आपके सामने कोई भी खतरा आ जाए, आप यूं बैठे रहेंगे, मार ले, मारना है मार ले आके, या मेरे से लड़ना है लड़ ले आके, मतलब यू वोंट रिस्पॉन्ड एट ऑल इफ योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल नॉट बी देयर इन योर बॉडी। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, फ्लाइट फ्रॉम द सिचुएशन एंड फाइट विद द सिचुएशन, है ना? उसके लिए बहुत जरूरी है। मगर अगर ये पूरे टाइम एक्टिवेट रहेगा तो ये तो बहुत तरीके की बीमारियां ले आएगा, कि अगर आप पूरे टाइम आप एक्टिव मोड में रहेंगे तो यू नीड टू रिलैक्स ऑल्सो। ये काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आप, अब आप किसी सिचुएशन से फ्री हो जाते हैं, या तो आप भाग जाते हैं सेफ जगह पे, या आप किसी मैटर को सॉल्व कर लेते हैं, तो सारी चीजों को अपनी जगह पे वापस लाने का काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसलिए सिस्टम को बोला जाता है रिलैक्स और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। ये वापस उन चीजों को अपनी जगह पे ले आता है। एंड योगा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन। स्टिमुलेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, रिलैक्सेशन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया था, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दोनों चीजों के लिए एनर्जी चाहिए आपके। तो व्हेन यू आर फाइटिंग, यू आर एक्टिवेटिंग योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगेन वेयर व्हेन यू आर फ्लाइटिंग, जब आप भाग रहे हैं, रनिंग अवे फ्रॉम सम प्रॉब्लम, अगेन यू आर स्टिमुलेटिंग योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आगे चलते हैं। प्रोलॉन्ग सिचुएशन की मैंने बात की थी। स्ट्रेसफुल प्रोलॉन्ग सिचुएशन से क्या होता है, जब कंटिन्यूअसली आप फाइट या फ्लाइट मोड में रहेंगे, या तो आप लड़ने के मूड में रहेंगे या आप भागने के मूड में रहेंगे। अगर आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तो आज की डेट में ये बात छुपी नहीं है, आप लोग सब लोग या तो अपने अड़ोस पड़ोस में या खुद अपनी बॉडी में महसूस करते हैं कि इधर यू हैव एक्सेसिव एसिडिटी, पेट की प्रॉब्लम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेप्टिक अल्सर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर लगना, इंसोम्निया वेरी कॉमन, नींद ही नहीं आ रही है, पूरे दिन काम कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही। आपने कई लोगों को बोलते सुना होगा मेरा बीपी आजकल हाई है। पहले सुनते थे हम, बिल्कुल नहीं। आज के डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ईदर लो बीपी और हाई बीपी। लो बैक पेन, हमारे पास नंबर ही नहीं है कितने लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए लो बैक पेन के लिए। आर्थराइटिस, कम कम उम्र में कुछ बच्चे हैं हमारे पास 20-21 साल के, उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? सब स्ट्रेस की वजह से। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, कंप्यूटर पे काम दिन भर, आपके सर्वाइकल मसल्स एंड सर्वाइकल आपके जो जॉइंट्स हैं कुशन से जा रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर, पहले बहुत कम सुनने में मिलता था, आज जवान जवान लोग, यंग लोग गाड़ी चलाने में स्टीयरिंग संभाल नहीं पाते हैं, क्यों? एस्थमा ब्रोंकाइटिस, बच्चों को देख लीजिए आप। एंड इससे भी ऊपर की एक सिचुएशन है नेजल पॉलिप्स, विच इज वेरी कॉमन, जो पहले बहुत रेयर हुआ करती थी। एंड दिस इज अ डेडलीस्ट सिचुएशन, नेजल पॉलिप्स। यहाँ पे हमारे साथ में है कुछ, अगर शेयर करना चाहें आगे, मैं उनके परमिशन से ही उनको आगे बुलाऊंगी। शी इज फाइटिंग विथ नेजल पॉलिप्स, राइट? अब यहाँ से हमारा प्रेजेंटेशन आज का असली जो हमने सेकंड पार्ट रखा था, सो वो हम शुरू कर रहे हैं। ये इन जो भी मैंने अभी पीछे एलिमेंट्स बताए हैं जो कि साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स थे, इनको हम अपने पंचकोश लेवल पे पहले ही ठीक कर सकते हैं, और हमें बहुत ज्यादा मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर उसके लिए वही पहली स्लाइड याद कीजिए आप लोग, मैंने कहा था यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू लिसन टू योर बॉडी। हमें अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, तभी हम अपने पंचकोश के लेवल पे ये सारी डिजीजेस को ठीक कर पाएंगे। कैसे? हम 2-3 तरीके लेंगे यहाँ पे, यहाँ से समझने वाली बातें शुरू होती हैं। यूजुअली क्या होता है, जब एक इंसान मेडिकली इल होता है, यानी कि उसको लगता है कि मुझे कोई चीज बॉदर कर रही है बार बार, इनफर्टिलिटी वेरी कॉमन दीज डेज, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, बहुत लड़कियां, बहुत लोग आजकल ये चीज बोल रहे हैं कि हमको है और वी आर नॉट इजीली
कंसीविंग, और जो कंसीव करते हैं वो मिसकैरेज हो जाता है। एक बहुत ज्वलन समस्या है आज की डेट में, है ना? उसके अलावा कार्डियोलॉजी बहुत कॉमन है। तो जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो हमें जो अक्सर जो गोलियाँ दी जाती हैं, वो इतनी हार्मफुल होती हैं आपके लीवर्स और किडनी के लिए कि अगर उनको लंबे समय तक लिया जाए, तो वो कहीं न कहीं जाके आप एक समस्या को दूर करने के चक्कर में अपने दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर लेते हैं। और इसका सबसे पहला शिकार बनता है या तो हमारा लीवर या हमारी किडनीज़ फॉर एक्स्ट्रा स्टेरॉइड्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, एंटी डिप्रेसेंट्स। ये जो जितनी भी आजकल दवाइयाँ बहुत प्रचलित हो गई, कुछ भी हुआ, जैसे डॉक्टर पीएन जैन साहब थे पिछले हमारे प्रेजेंटेशन में टाटा मेमोरियल से, ही वाज फ्रेजिंग कि लोग बाग पेंटॉप एंटासिड जो गोलियां आती हैं वो इतने धड़ल्ले से लेते हैं बिना डॉक्टर से पूछे, एंड इट इज कॉजिंग स्टमक कैंसर्स या अल्सर, कि हाँ ठीक है आपको एसिड हुआ तो उसका इलाज कीजिए आप एसिड का, मगर एंटासिड खाना हर बार, पुदीन हरा खा लेना इज नॉट द सोल्यूशन। तो ये स्लाइड सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई अंत नहीं है। आप जब घुसेंगे इसमें तो आपको स्टेरॉइड्स भी दिए जाएंगे, आपको एंटी डिप्रेसेंट भी दिए जाएंगे, जैसे भी आपकी बीमारी है। और फिर इस चीज के ऊपर आप ये सोच के देखिए कि आपको आपको दवा देके उन्होंने आईसीयू में आपके वार्ड में आपको लेटा रखा है, सो यू आर एट पीस, आपको कुछ नहीं पता, बट एवरी सेकेंड योर फैमिली इज डाइंग, चिंता में कि क्या होगा। पैसे जो लगते हैं एक-एक ट्रीटमेंट में, मेरी इस बात से मेरे ख्याल से कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि अगर हम अच्छा ट्रीटमेंट किसी डिजीज का कराने जाते हैं, तो फाइनेंशियली वो फैमिली फिनिश हो जाती है। यौगिक मैनेजमेंट क्या है मैकेनिज्म का? मैंने जो बताया मैकेनिज्म क्या है यौगिक, इसके अंदर हम जो बेस ले रहे हैं, योग वशिष्ठ ले रहे हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया है। इसमें ये बताया है कि योगा जो वर्क करता है वो इन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन, मतलब दोनों ही सिस्टम्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर खाली रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे तो आप लेथार्जिक हो जाएँगे, और अगर आप खाली स्टिमुलेशन के उस पे रहेंगे, तो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आके बीमारियों के शिकार बन जाएँगे। तो योगा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन। यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करना जा रही हूँ। हर लेयर के लिए अलग-अलग थेरेपीज़ बताई हैं योग वशिष्ठ में। हर लेयर के लिए। अब हम एक-एक लेयर लेंगे और उसको कैसे ठीक करना है ये देखेंगे। मैं आई एम नॉट वेरी मच वर्स इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ मोटा-मोटा इतना जानती हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स में ये सारी दवाइयाँ दी जाती हैं और एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, सिटिंग्स होती हैं, आपको चक्कर काटने पड़ते हैं हॉस्पिटल्स के। मगर ये चीज़ हमें सिर्फ कॉन्शियसनेस से आएगी, हम बात करते हैं हमारे अन्नमय कोश की, जो हमारी फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर को हेल्दी बनाने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो कि बहुत सारे रिसर्चेस के बाद ये शीट बनाई है, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये दिए हैं, एस व्यासा बेंगलुरु। ये उसके ऊपर जो रिसर्चेस की गई हैं, उनके माध्यम से मैं आप लोगों को ये चीज़ें कन्फर्म कर रही हूँ कि एक तो हो गई डाइट। अब डाइट में क्या है, पहले आपको अन्नमय कोश को क्लीन रखना पड़ेगा। तो अन्नमय कोश को हम 2 तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, एक प्यूरिफिकेशन करके, दूसरा उसकी स्ट्रेंथनिंग करके। अच्छा, अब प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहली बात कि गार्बेज इन, गार्बेज आउट का सिस्टम है, कंसेप्ट लगता है। अगर आप दिन-रात जंक खाएँगे, दिन-रात आप बेकार चीज़ें खाएँगे जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जंक ही बाहर आएगा। तो पहली चीज़ आपको डाइट पे बहुत ध्यान रखना है। अब डाइट में भी 2-3 एस्पेक्ट आते हैं, एक आपका खाना, आपको सात्विक खाना, सात्विक में मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप एकदम सिंपल पे आ जाएँ, मगर एटलीस्ट घर का बना हुआ खाना हो, आपके साफ शुद्ध मसाले हों। दूसरी चीज़, डाइट से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आज की डेट में बहुत प्रचलित है, टाइम से खाना। हम इतना काम कर रहे हैं ऑफिस में कि हमारे ना लंच का ठिकाना, ना हमारे डिनर का ठिकाना। तो हम काम कर क्यों रहे हैं? खाने के लिए ही ना। 2 वक़्त की रोटी मिले हमें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट इस 2 वक़्त की रोटी का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, रात को खाना खाना इज़ बिल्कुल सेम एज़ ईटिंग योर पॉइज़न, मतलब यू आर ईटिंग अ पॉइज़न। ये बहुत लोगों ने कहा है और इसके ऊपर कई सारे रिसर्च पेपर्स बने हुए हैं कि अगर आप साढ़े 6-7 बजे के बाद खाना खा
जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग एनर्जी, ये खाना आपको सिर्फ अननेसेसरी फैट देता है, बेली फैट, आपके बटक्स पे फैट, आपके आर्म्स पे फैट। तो खाना सही होने के साथ उसका टाइम भी सही होना चाहिए। मतलब यू कैन नॉट गिव मी दिस एक्सप्लेनेशन कि मैं खाना दाल रोटी खा रही हूँ मगर मैं रात को 10-11 बजे खा रही हूँ, नो यूज। दूसरी चीज, लूजनिंग एक्सरसाइजेस फॉर स्ट्रेंथनिंग। लूजनिंग एक्सरसाइजेस बेसिकली की जाती हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म जॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए, वहां पे प्राणिक फ्लो को पहुंचाने के लिए। क्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अपने योगिक सेशंस में क्रियाज भी लेती हूँ, मेरे स्टूडेंट जानते हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, इसके लिए है जल नेति, सूत्र नेति। आपके पेट में एसिड बहुत ज्यादा बनता है, वमन कीजिए, है ना, कुंजल क्रिया जिसको बोलते हैं। उसके अलावा आप दंड कीजिए, अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिड बनता है तो दंड धोती कीजिए। अगर आपको म्यूकस बहुत ज्यादा बनता है, अगर आप कफ डोमिनेंट है तो आप वस्त्र धोती कीजिए, आपका पूरा म्यूकस बाहर आएगा। तो बाहर की स्वच्छता तो माना कि वो जरूरी है, मगर अगर आपको बॉडी को हेल्दी रखना है तो आपको अंदर से टॉक्सिन्स को निकालना पड़ेगा। वो योगा थेरेपी में क्रियास के माध्यम से होता है। आसन हम करते हैं हमारे बॉडी और माइंड की स्टेबिलिटी के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कीप योर अन्नमय कोश हेल्दी इज सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में सारे टाइप के आपके एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, 8-10 आसन आ जाते हैं, और आपकी ओवरऑल आपके अंदर जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिवेट होती है और आपकी नाड़ी बैलेंस होती है। इसके बाद आते हैं हम प्राणमय कोश। हाउ टू कीप योर प्राणमय कोश हेल्दी। ये मैं एक एक लेके इसलिए चल रही हूँ क्योंकि हर शीट के लिए गुरु वशिष्ठ ने ट्रीटमेंट्स बताए हैं, और ये कोई ऐसे ट्रीटमेंट नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़े या आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़े। आपको सिर्फ अवेयर रहना है कि किस लेयर में आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है और उस लेयर के लिए क्या ट्रीटमेंट चाहिए। आपको अवेयरनेस के साथ कॉन्शियसली उस ट्रीटमेंट को अप्लाई करना है अपने घर में, अपने वर्क साइट पर रहते हुए, सिर्फ अवेयरनेस के माध्यम से। और इसके लिए आज के डेट में कई सारे पढ़े लिखे, मतलब जिनको वेल अवेयर हैं, जिनको अच्छी नॉलेज है, ऐसे टीचर्स अवेलेबल हैं, दे कैन गाइड यू। प्राणमय कोश की बात करते हैं, जो हमारी सेकंड लेयर होती है। इसके अंदर बेसिकली जो मैंने बताया 72,000 नाड़ियों का चैनल है जो कि पूरे शरीर में प्राणास का प्रवाह करता है। जहां पे भी हमारे प्राणास ब्लॉक होते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, वो चक्र हमारा वीक हो जाता है, और उसी करस्पॉन्डिंग बेल्ट में जो ऑर्गन्स आते हैं उनके ऊपर पहले बीमारियां आती हैं। तो आपके प्राणास को पूरी बॉडी में फ्लो करने के लिए और सब जगह पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राणायाम। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में क्या है, प्राणायाम में फास्ट एक्सरसाइजेस हैं, बहुत तेज तेज सांस लेना, बहुत तेज तेज सांस छोड़ना। कपालभाति हो गया, आपके भस्त्रिका हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम हो गया, आपकी भ्रामरी हो गई इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा एक और टेक्निक एस व्यासा बेंगलुरु ने इंट्रोड्यूस की है, प्राणिक एनर्जाइजिंग टेक्निक, पीईटी। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, ये कर सकते हैं आप अपने प्राणमय कोश को हेल्दी रखने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको दिन भर में पूरे 24 घंटे में 15 मिनट से ज्यादा की जरूरत है, बट यू कैन कीप योर सेकेंड लेयर हेल्दी। थर्ड लेयर पे आता है मनोमय कोश, विच इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, 90% प्रॉब्लम्स कम्स फ्रॉम मनोमय कोशा। उसके लिए हमें क्या करना है, गौर से देखेंगे। मनोमय कोश के लिए हमें क्या करना है, माइंड को क्लीन करना है बेसिकली, है ना। तो इसके लिए एस व्यासा बेंगलुरु ने एक टेक्निक इजाद की है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इसको हम आगे कभी कवर करेंगे। माइंड एंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, MSRT। ये हम इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको कोई एक्सपर्ट ही करवा सकता है। काउंसलिंग। अगर आपके दिमाग में कंटिन्यूसली कोई थॉट हिट कर रहा है जो आपको समझ में आ रहा है कि ये विचार मेरे दिमाग से नहीं जा पा रहा, या मैं इससे हटके कुछ और नहीं सोच पा रहा हूं या सोच पा रही हूं, व्हाट शुड आई डू। सी, जहां आपकी क्षमता से कोई चीज बाहर निकल जाए, व्हेन यू कैन नॉट थिंक ऑफ योर प्रॉब्लम खुद से, या सॉल्यूशन, यू कैन नॉट सी द सॉल्यूशन, यू शुड ऑलवेज सीक फॉर हेल्प किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो, या जिसको देखकर आपको लगता हो कि वो आपको हेल्प कर सकता है। सो प्रीति हैज गिवन वेरी गुड प्लेटफॉर्म, HTH। यहाँ पर आप आकर, बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं, बहुत सारे काउंसलर्स हैं, बहुत सारे लाइफ कोचेज हैं, जिनसे आप आकर अपनी समस्या को डिस्कस कर सकते हैं। और एक कोट मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी,
बेस्ट solution to any problem is to discuss that. Seriously, बेस्ट सॉल्यूशन, किसी भी समस्या का सबसे अच्छा निदान होता है उसको डिस्कस करना, किसी के साथ साझा करना। हो सकता है कि उस प्रॉब्लम की वजह से आपका दिमाग ना चल पा रहा हो, मगर हो सकता है कि वो सामने वाला फ्रेश है बिल्कुल दिमाग से और उसने तुरंत आपको कोई उसका सोल्यूशन बता दिया। तो बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज टू डिस्कस दैट। याद रखिएगा इस चीज को। डेफिनेटली मेडिटेशन, आप अंदर जाइए, आपको मेडिटेशन से बहुत राहत मिलेगी, बहुत संतुष्टि मिलेगी। योग निद्रा एक टेक्निक है योगा में जिसमें हम 35 मिनट माइंड को रिलैक्स करते हैं, एक्टिव रखते हुए माइंड को रिलैक्स करते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। और उसके अलावा डिवोशनल एक्टिविटीज, भक्ति योग यहाँ पे चमत्कारी काम करता है। जब भी आप परेशान हैं, जब भी आपके कोई ऐसे थॉट से आप जूझ रहे हैं जिसका आपको वो नहीं मिल रहा है, निदान नहीं मिल रहा है, बिलीव मी, घर में भजन चलाइए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अपनी लाइफ की अच्छी चीजों की लिस्ट बनाना शुरू कीजिए कि यू आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल हाउस, आपके घर, आपके सर पे छत है, यू आर ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल फैमिली, आपको बिना किसी चिंता के 3 वक्त की रोटी मिल रही है, आपका जीवन ओवरऑल जो सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, आपका जीवन, आपका घर कई हजार लोगों का सपना है। फील योरसेल्फ ब्लेस्ड, सी द ब्राइटर पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप इतने ब्लेस्ड हैं। अगर मैं कहती हूँ आपके पास इन सब में से कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास एक स्वस्थ बॉडी है जो कि संपूर्ण है, पूरी है, आपकी बॉडी में कोई एलिमेंट नहीं है, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि कोई गिर जाए या कोई मुसीबत में पड़ जाए आप उसकी हेल्प कर सकें, मेरे ख्याल से थैंक्स या ग्रैटिट्यूड के लिए यही एक पॉइंट बहुत बड़ी चीज है। तो फील योरसेल्फ ब्लेस्ड। आप देखेंगे जब आप अच्छी चीजों की तरफ देखना शुरू करेंगे, यू स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड, और आपको लगेगा सीरियसली मेरे पास इतनी चीजें हैं, सामने वाले के पास ये चीज ही नहीं। तो यहाँ पे डिवोशनल एक्टिविटीज, ईश्वर का धन्यवाद करें, बी ग्रेटफुल, और भजन सुनिए, डिवोशनल चीजों पे इंडल्ज कीजिए, मंदिर जाइए। आप मनोमय कोश को ठीक कर सकते हैं, बिलीव मी, सिंपल थिंकिंग चेंज करके। किसी भी चीज की पॉजिटिव लेयर को देखना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना शुरू कर दीजिए, लोगों से हेल्प लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भजन सुनिए, है ना। फिर आते हैं हम चौथे विज्ञानमय कोश पे आते हैं, हमारे इंटेलेक्ट शीट। इंटेलेक्ट शीट में क्या है? आपकी बुद्धि, सही गलत क्या है। अगर ये भ्रमित हो रही है तो मान के चलिए कि यू नीड अ बेस, आपको एक बेस चाहिए जहां पे कि जो सही चीजें हैं उनका संग्रह हो, उनका कॉम्बिनेशन, उनका कलेक्शन हो। तो ऐसी चीजें कहाँ मिलेंगी आपको? डेफिनेटली ओल्ड स्क्रिप्चर्स में, जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, ऐसे लोगों की लिखी हुई विद्वानों की किताबों को पढ़िए, अच्छी किताबों को पढ़िए। मैंने पहले भी अभी बोला था कि अच्छी रीडिंग, अच्छे लोगों की संगत से आप अच्छे विचार रखते हैं, तो वाला सिस्टम नहीं आएगा यहाँ पे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जब आप अच्छी चीजें रखेंगे तो प्रोडक्टिव चीजें दिमाग में जाएंगी, प्रोडक्टिव चीजें बाहर आएंगी। लेक्चर सुनिए अच्छे अच्छे लोगों के, ज्ञान योग, राजयोग, इनका प्रैक्टिस कीजिए। जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, भगवत गीता, उसको उठा के पढ़िए, देखिए उसके अंदर बिल्कुल सही चीज, अनबायस्ड चीजें दी हुई हैं। तो जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आपकी बुद्धि आपका साथ ना दे, उस समय वही करना चाहिए जो ऑलरेडी विद्वान प्रूफ कर चुके हैं। इस तरीके से आप अपने विज्ञानमय कोश की रिपेयर कर सकते हैं। और पांचवी शीट आती है, जब हम ये चारों लेयर्स पे काम करेंगे तो हमें पांचवी लेयर पे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी जो ब्लिस है, हमारी जो जो अंदर की खुशी है, जो अंदर की संतुष्टि है, वो हमें मिल जाएगी। और इसके लिए भी मैं एक चीज और बताती हूँ कि ये हमें कब मिलती है खुशी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो बहुत ज्यादा मुसीबत में है या बहुत ज्यादा नीडी है या बहुत ज्यादा भूखा है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, और आपने उसको भर पेट खाना खिला दिया और आप उसको देख रहे हैं खाना खाते हुए, तो जो उसकी चेहरे पे जो संतुष्टि है, उसकी जो खुशी है, वो आपको फील देगी। आपके अंदर का जो इंटरनल शीट है, ब्लिस यानी आनंदमय कोश को जो वो हिलाएगी, वहां पे आपको महसूस होगा कि मेरा असल आनंद यहाँ पे है, किसी की मदद करके। तो यहाँ पे एक थेरेपी दी गई है, इसके लिए इन्होंने इसमें वो नहीं किया गया है, कंटेनमेंट, संतोष, चैरिटी, सेल्फलेस हेल्प, मतलब आप किसी से एक्सपेक्ट ना करें और हेल्प करें उसकी। वहां से आपको जो खुशी मिलेगी वो असल आपके आनंदमय कोश है। फ्रिज, टीवी, बच्चे अच्छे स्कूल में, बच्चे अच्छे कॉलेज में, ये सब टेम्परेरी हैप्पीनेस है। आगे चलते हैं। ये क्यों हैंग हो जा रही है बार बार?
इसके अलावा ये हमने जो यहाँ पे लिया, ये इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच टू योगा थेरेपी। ये जो चीज है ये एक पूरा कंसोलिडेटेड सिस्टम है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो 5 लेयर पर्सनालिटी है, फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल, जो मैंने पिछली बार डिस्कस की थी, आपकी ये सारी पर्सनालिटीज सिर्फ आप अन्नमय कोश पे काम करें और ठीक हो जाए, सॉरी, नहीं हो सकता। आप खाली मनोमय कोश पे काम करें, क्योंकि आपने कहा था 90% प्रॉब्लम मनोमय कोश से आती है, सॉरी, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू मेक ए कंसोलिडेटेड प्लान, और आपको अपनी सारी शीट्स पे काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको जो अंदर इंटरनल ब्लिस है, या वो अगर आपको ना भी समझ में आए तो एटलीस्ट आपके 4 लेयर्स, तब जाके ये पूरा ट्रीटमेंट कहलाता है इंटीग्रेटेड अप्रोच टू योगा थेरेपी। और अगर आपसे कोई कहे कि आप पतले हो जाएंगे, आइए मैं योगा कराऊं, आप इतना वेट लूज कर देंगे, आइए मैं योगा कराऊं, दैट इज नॉट योगा, प्लीज। मैं मतलब बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ कि मेरे पास जब कोई ये चीज सीख करता हुआ आता है कि मुझे पतला कर दो, मैं बोलती हूँ आपके लिए योगा नहीं है। योगा इज फॉर माइंड, योगा इज फॉर सेटिस्फेक्शन, योगा इज फॉर चेंजिंग योर थॉट्स। डेफिनेटली इन सारी चीजों का असर अन्नमय कोश पे आता ही आता है, क्रिया, लूजनिंग, आसन, सन सैल्यूटेशन से इन सब चीजों पे आता है, बट बेसिक मोटिव ये नहीं है जो लोग बोलते हुए आते हैं योगा को। अब हम जनरल एक बात करते हैं कि इन सब चीजों के अलावा जरूरी नहीं कि हर इंसान योगा के लिए टाइम निकाल पाए, या हर इंसान योगा में इंटरेस्टेड हो, या हर इंसान इतना ज्यादा एंथुजियास्ट हो कि नहीं नहीं योगा करना है। तो फिर हम कैसे इन सारी शीट्स को कवर करें, क्योंकि शीट्स तो हमारे साथ हैं, ये बात पक्की है कि हर इंसान ये 5 शीट से बना हुआ है, तो शीट्स तो सबके पास है, मगर हो सकता है योगा ना कर पाए कोई। तो क्या करें? देखिए, अपने आप को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, यहाँ पे भी गुरु वशिष्ठ ने एक 4 चीजें बोली हैं, आचार, विचार, आहार और व्यवहार, विहार, ये 4 चीजें बोली हैं। जो चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती हो, या जिसको करके आप टेंशन फ्री हो जाते हो, वो चीज आप दिन में एटलीस्ट एक बार जरूर करें। दूसरी चीज, सारी चीजें ठीक है हम जिनके लिए कर रहे हैं, बिल्कुल जरूर से दिन में एक चीज बनाइए कि या तो आप कोई एक मील पूरी फैमिली साथ में लें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, मगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपने लव वन के साथ। इससे आपकी कोई ना कोई शीट रिपेयर जरूर हो रही है, स्पेशली और मनोमय कोश। दिन भर में देखिए, जब तक शरीर चल रहा है, जब तक आपके प्राणास चल रहे हैं ना, ये जान है तभी जहान है। अगर जान ही नहीं है तो जहान तो है ही नहीं। फिर आपकी जॉब, आपके काम, घर के सब लोगों को घमंड होता है, गुरूर होता है, मैं चला गया तब देखना क्या काम होगा। किसी की वजह से कोई काम नहीं रुकता, सिर्फ आप जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि अपनी बॉडी को पैम्पर करने के लिए आराम मत दीजिए, 1 घंटे उसको रिग्रेसली यूज कीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो भी गेम पसंद हो, स्पोर्ट पसंद हो, वो खेलिए, मगर इस बॉडी को यूज कीजिए। कुछ मिनट जरूर भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना कीजिए। ट्राई टू कनेक्ट योर सहस्त्रार चक्र विद स्पिरिचुअल पावर्स। और इसके लिए मेरा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप घंटी लेके बैठ जाइए, पूजा की थाली लेके बैठ जाइए, बिल्कुल मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा सिंपल मतलब ये है, सिंपली ट्राई टू कनेक्ट विद गॉड फॉर फ्यू मिनट्स। ये आपको इनर स्ट्रेंथ देगा, ये आपको रास्ता दिखाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें करनी भी है और हमारे बच्चों से करवानी भी है। ईट हेल्दी, ये तो मैंने पहले ही बताया था, अच्छा खाना खाइए, डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, डिस्कस योर कंसर्न, बिल्कुल, है ना। वो एक एक कहावत मैंने व्हाट्सएप पे ज्ञान पे पाई थी कि अगर खोल लेते दिल यारों के सामने तो नहीं खुलवाना पड़ता दिल डॉक्टर के सामने, आपकी बाईपास सर्जरी नहीं होती। तो डिस्कस योर कंसर्न विद फैमिली, फ्रेंड्स और जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं, है ना। उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज है विज्ञानमय कोश के लिए, रात को सोने से पहले किसी भी एक बुक को उठाइए और बिल्कुल एज ए टैबलेट 2 पन्ने पढ़िए उसके और फिर सोइए। सबकॉन्शियस माइंड, आप सब लोगों ने सुना होगा कि आपके कॉन्शियस माइंड में जो आप फीड करते हैं वो चीज ट्रांसफर होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती है वही आपके साथ होता है लाइफ में, या वही सपने आते हैं आपको। तो फीड योर सबकॉन्शियस माइंड विद सम गुड पॉजिटिव थॉट्स, और इसी के लिए मैंने आपको बोला है कि रात को सोने से पहले सिरहाने एक किताब रखिए, कुछ नहीं, सिर्फ 2 पन्ने पढ़ के सो जाइए एज ए टैबलेट। हर चीज के पॉजिटिव एंगल को देखने की कोशिश कीजिए, ब्रॉड ब्रॉड सोचिए, है ना। खुद को अच्छा लगेगा, दूसरों के लिए मत कीजिए, खुद को अच्छा लगेगा।
जहां पे भी आपको नेगेटिव सुनने मिले या जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं ऐसे लोग, है ना, तुरंत वहां से हट जाइए। आपने जिम्मा नहीं लिया है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, आपने जिम्मा नहीं लिया है कि आप सब जगह से गार्बेज कलेक्ट करें। तो अवॉइड द कंपनी ऑफ डिमोटिवेटिंग एंड नेगेटिव पीपल। जितना आप, वो कहते हैं ना संगत से रंगत आती है, जितनी अच्छी संगत उतनी अच्छी रंगत। सेल्फलेस हेल्प करने की एटीट्यूड को डेवलप कीजिए। किसी को दिया उसके बाद भूल जाइए, है ना। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लास्ट में इसलिए लिखा है, डेवलप द हैबिट ऑफ ट्राइंग एंड सरेंडरिंग। इसको यौगिक भाषा में ईश्वर प्राणिधान बोलते हैं। यानी कि आपके पास कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, सबसे पहले ठंडी दिमाग से सांस लेके ये चीज सोचिए कि क्या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैं कुछ कर सकता हूं। अगर आपके अंतरात्मा से जवाब आए कि यस आई कैन डू, ठंडे दिमाग से सोचिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और डेफिनेटली कीजिए। मगर कहीं अंदर से जवाब आए कि ये ऐसी समस्या है जिसके केस में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो बिलीव मी, उसको ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। उसको ईश्वर प्राणिधान बोलते हैं। और पूरे विश्वास के साथ उस प्रॉब्लम को सरेंडर कीजिए कि आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, जैसा करेंगे अच्छा करेंगे, और जब करेंगे अच्छा करेंगे। जो, जैसा और जब भी करेंगे अच्छा करेंगे। इस विश्वास के साथ पहले ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा सरेंडर कर दीजिए। बिलीव मी, आप स्ट्रेस को कम करेंगे और ये जो प्रोलॉन्ग स्ट्रेसफुल सिचुएशन है इससे आप पार पा पाएंगे। और जब प्रोलॉन्ग स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी रहेगी ही नहीं तो बीमारियां कहाँ से आएंगी। आपका मनोमय कोश हेल्दी रहेगा तो आपका प्राणमय कोश हेल्दी रहेगा, आपका प्राणमय कोश हेल्दी रहेगा तो आपका अन्नमय कोश हेल्दी रहेगा। और जब आपका मनोमय कोश हेल्दी रहेगा तो आपकी बुद्धि भी भ्रमित नहीं होगी, आपका विज्ञानमय कोश हेल्दी रहेगा। और जब आपके ये चारों कोश हेल्दी रहेंगे तो जाहिर सी बात है, यू विल बी एबल टू फील द इंटरनल ब्लिस विच इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, टू फील दिस इंटरनल ब्लिस। सो आई होप कि मैंने इस टॉपिक के साथ न्याय करने की कोशिश में मैं सफल रही हूँ। और मैंने अपनी तरफ से बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की। और थैंक यू सो मच इतने पेशेंटली मुझे सुनने के लिए। मगर इस टॉपिक का अंत मैं एक बहुत फेमस कोट से करना चाहती हूँ कि आज की डेट में कहते हैं ना, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, अ फिट बॉडी, अ काम माइंड, अ स्ट्रेस फ्री स्लीप। मतलब आप अगर रात को बिल्कुल साउंड स्लीप सो रहे हैं तो आप सुखी हैं। अगर आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है तो आप सुखी हैं। अगर आपकी बॉडी फिट है और पूरी है तो आप सुखी हैं, है ना। और घर के अंदर प्यार आज की डेट में बहुत कम देखने मिलता है, मगर घर के अंदर आपस में सदस्यों के लिए, एक दूसरे के लिए प्यार बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जो है ना, ये असल मायने में रियल ट्रेजर्स हैं हमारे। बाकी पैसा यहीं छूट जाता है, बॉडी भी यहीं छूट जाती है, सब कुछ यहीं। ये फिलोसफिकल बात है मगर ये अटल सत्य है। तो ये खरीदे नहीं जा सकते, मगर ये अर्न किए जा सकते हैं अगर हम अपने पंच कोश को अच्छे से जाने और उनको पैम्पर करें दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के। अदरवाइज बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा लेके हॉस्पिटल में टाइम बिताना पड़ता है हमें, और ये बहुत कड़वा सच है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। और दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन पंचकोशा, एंड आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस from my wonderful audience. Thank you, Preeti. Yeah, you can unshare your screen now. Yes. It was a wonderful, means like no words for that. इतने easy language में तुमने समझाया, इतना अच्छा था ये. It's really okay. Sir is raising hand. So you can please unmute yourself. I think you can. Let me check once. थैंक यू मोनिका दी, बहुत अच्छा था, बहुत Thank you, इन्फॉर्मेटिव Raksha. था। थैंक यू। Yes, sir. You can speak now. परमानंद सर आ गए हैं? Yeah, हाँ he जी, was there. He was there. अच्छा हेलो, सर, नमस्ते। चरण स्पर्श। नमस्कार। कैन यू लिसन टू मी? जी सर। Yes, sir. अच्छा, तो दिस वाज एब्सोल्युटली ग्रेट प्रेजेंटेशन एंड यू आर सर एक्चुअली ट्रेन में है। Okay, okay. So would you like to switch on your camera?
you are, because it's right. I mean, like if we see the people हाँ from सर there, आ गए. like we can get the vibes. It's always great to see them. Namaste. Namaste. So it was great listening to you, Monica. Thank And you, sir. it is not only about yoga, but you are a great motivational speaker also. Thank you, sir. Apart from the real science of yoga, you are doing that also. So thanks to you. Thanks, great. And you, sir. I would say that you have told so many things about this cause of the disease. You have talked about causes of the disease. So that is very good. That is very nice that you are talking of causes of the disease. And that is very pertinent to let people understand why diseases are caused at all. So by giving very examples, so many examples also you have narrated that. So nice of you, and that shows that why you are a gold medalist. So you have in-depth knowledge of everything. That is why examples also come very automatic to you immediately. So people, only thing you go little slow because due to these presentations, you are trying to complete your presentation. So you are going too fast, I think. Sir, I'll try. So give a gap of 2 to 3 seconds between sentences. जी सर. So people grasp that. जी सर. बिल्कुल मैं ध्यान Don't रखूंगी go इस very चीज का. fast. जी सर. So it will be so nice to listen to you, and you have Vyadi and Adi and Vyadi and Sara. व्याधि भी आपने बताई. तो सामान्य. वो हमारे जो जैन गुरुज हैं वो भी सब बताते हैं कि बहुत सी डिजीज ठीक ही नहीं होती. तो बोले कि ये तो आपके पूर्व जन्म के कुछ दिए हुए संस्कार हैं. हाँ. और जो आपके कर्म हैं उनकी वजह से बीमारी छूट नहीं रही. तो वो ही वशिष्ठ ने बताया कि वो सारा व्याधि है वो. तो बिल्कुल सही बैठती है. जो भी जैनिज्म के प्रिंसिपल्स हैं वो भी उसमें भी आप बिल्कुल सही सेट होते हैं. मतलब आपके जो भी सर जो अष्टांग योग है, हाँ, अष्टांग योग मैं कभी कवर करूंगी. अष्टांग योग पूरा बेस करता है जैनिज्म के प्रिंसिपल्स पे. तो मैं कभी मौका लगा तो अष्टांग योग के ऊपर पूरा लूंगी प्रेजेंटेशन. बहुत अच्छा आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया. बहुत अच्छा. पीपल विल ट्राई टू इफ 10% you फॉलो करेंगे तो दे कैन चेंज देमसेल्फ ड्रास्टिकली. और जो आपने वो बात कप में बताया कि भाई दो जरूरी हैं बैलेंस में, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. वो भी अच्छी चीज है. तो केवल अन्न कोश पे ध्यान न दें. मन कोश और अन्न कोश दोनों ही जब चलते हैं तभी कुछ होता है. और वो भी ठीक है कि लोग आते हैं कि भाई हम वेट रिड्यूस करना है तो योगा करेंगे, तो वो भी सब ट्रू नहीं है. वो ऐसा नहीं है कुछ भी जी. ये सब बॉडी को अलाइनमेंट, जैसे कार को अलाइनमेंट करने जाते हैं उसका कि भाई सब चारों व्हील्स को अलाइन कर दो. जी. तो ये बॉडी को भी अलाइनमेंट करना चाहिए कभी. हाँ बिल्कुल. वो योगा इज द बेस्ट. बिल्कुल. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your insightful words. Sir, I would like that आप कभी हमारे प्लेटफॉर्म से सेशन लीजिए. You are so talented. Please give हम me कैंसर your के ऊपर ही ले date or सकते हैं time. कि हाँ ऐसे ही कैंसर के ऊपर ही ले सकते हैं. हाँ जी बिल्कुल. जरूर सर, जरूर सर. How to prevent cancer. बहुत Prevention ज्यादा of आजकल है. cancer. प्रिवेंशन ऑफ कैंसर. जरूर सर, आपका प्लान करते हैं. मुझे डेट बता दीजिएगा, मैं शेड्यूल कर दूंगी. और हाँ, आप टाइम बता दीजिएगा क्योंकि आप इतने बिजी हैं. I will tell you. Thank you so much. Bye. God bless you. Anyone else? Yeah, Avdesh, I want to tell you that we have now a YouTube channel, so you can. I'm already posting now. I think all the videos been posted over there, so you can go through there. You can subscribe our channel, please. It will give us also motivation. Request every and each audience to subscribe our channel. It is with the name of Healing Towards Happiness, and we have all the videos listed over there. If you are remain, so will be updated on Saturday or Sunday. So many messages for you, Monica. So I'm taking the screenshot because once the recording is being ended, so you cannot access this. So even you can take the screenshots of it, because I cannot means like again I cannot go back to these chats once the recording is ended, right?
Monica always takes in bilingual language. She tries to मैं इंट्रोडक्शन जरूर ट्राई करूंगी हिंदी में देने का अवदेश. I'll take your point. I'll be explaining both in Hindi and English, right? It's not only Monica who is conducting sessions from our platform. There are many more general awareness and motivational plus very specific topics being taken by different experts. So please do join every time whenever you are looking for the webinars awareness. So like last time it was on the graphology, and now again on Tuesday it is a color analyst, and again definitely Monica will be giving more sessions to us. And as Pamanand sir said that he'll be also giving us a date. So all the topics are so interesting and awakening that each one of you are going to benefit from it. When I'll not be getting anybody, so I am taking the sessions. So I'm always giving others the chance to take the sessions, because when there is no one to take the sessions, so then I'm always available, because it's my baby, so I have to take care that kabhi bhi wo bhuka nahi so jaye. So I keep on looking for that. So there are many mothers, many fathers to it, so they keep on taking the sessions. Yeah, one more thing I want to tell to men, those who have joined here. So I'm soon coming up with a series of webinars for only men. That is, I'll be talking about the emotional, I'll be talking about the sexual education, I'll be talking about the sexual arousal in the men, everything. So there will be a series of webinars for men. So please do share and please do join our group. Please do subscribe our channel. Please do join our WhatsApp group, those who have joined us today. Thank you. If anybody is having any other query, please come up. Another one more point I want to tell, that I'll be sending the link of my anthology. Please do participate in that. Support me. This will be my first anthology. I'm targeting 100 stories. Please do participate. Though it is means like funded one, so I'm not promoting over here. I'm not giving any link over here. Because our STH work completely without any money. We are not generating any money from it. So this is completely non-profit group. But yes, the anthology, if you participate, you need to pay for it. And that's the reason I'm not sharing over here. But it will be on Facebook, it will be on WhatsApp group, it will be on other different medias. Anybody wants to ask any question from Monica, she's there to answer your questions. So somebody was raising hand earlier. That was, so I'm stopping recording and then we can talk, right?